Again, what is the probability that zero event has occurred? We know in any event, in any interval, the probability of occurrence is a Poisson's distribution with mean of lambda t. And this is a Poisson distribution. If the mean is lambda t, it will be E minus lambda ti over I factorial. But we say zero event, this means I is 0, 0 factorial is 1, and lambda t to power 0 is 1. It comes out to be just equal to E minus lambda t. So probability that zero event has occurred is equal to E minus lambda t. हाँ सारों को बुक नजर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Now Yes, let us sir. go further. All right, good. Let us go further. If we say the hence t इधर नजर आ रहा है कि अभी t1 की एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है. क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ t1 ग्रेटर देन t कितना है? e माइनस लैम्डा t. तो ये एक्सपोनेंशियली एक्सपोनेंशियल होती है e माइनस लैम्डा t की तरह. लैम्डा x कर लें, जो भी कर लें, साथ एक कांस्टेंट भी डाल दें. तो मीन तो वैसे भी इसका 1 ओवर लैम्डा होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का. अच्छा, अब वो कह रहा है now what is the probability that t2 is greater than t? What is the probability that t2 is greater than t? तो हम कहते हैं this actually means there is a probability that t2 is greater than t given that t1 has happened or the first event has happened in t1. इसको एक और तरह से देखिए, यहाँ पर दोबारा लिखा हुआ है. ये पता नहीं ई मुझे लगता है इसने गलत डाल दी. यहाँ पे ई की कोई ज़रूरत नहीं थी. वैसे मेरा ख्याल से यहाँ पे ई नहीं आएगा. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट t2 इज ग्रेटर देन t गिवन दैट t1 इज इक्वल टू s. अब हमने t1 को यहाँ पे फिक्स कर दिया कि t1 जो है वो आपका s है. यानी t1 s का मतलब है कि जी s टाइम में एक इवेंट हो चुका है. अब ये है कि t2 को कितना टाइम लगेगा. तो वो सिंपल सी बात है कि प्रोबेबिलिटी दैट t2 इज ग्रेटर देन t मींस दैट s पे तो आपका पहला हो चुका था. दिस मींस if t2 is greater than t, still t time second event must not have occurred. So zero events must occur from s to s plus t, given that one event has already occurred till s. By other words, और ये पता आपको सारा कुछ इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ भी सब इंडिपेंडेंट ही था, तो इसको आप ले सकते हैं. दिस मीन्स दैट जीरो इवेंट हैज अकर्ड इन s इंटू s2, यानी कि s t इंटरवल में जीरो इवेंट अकर हुआ है. इसका मतलब ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? e माइनस लैम्डा t आएगी. जैसे इसकी आई वैसे इसकी भी आ जाएगी. क्योंकि इंटरवल आपका t है, तो t इंटरवल में जब जीरो आपने कहा जीरो इवेंट अकर हुआ है, तो उसमें वही पॉइजन का जीरो रख लें और e माइनस लैम्डा t आ जाएगा आपके पास. इससे क्या पता चला? दैट t2 is also exponential random variable with mean of 1 over lambda, and furthermore t2 is t2 is really independent of t1. So we can say that these t's are independent. They are identical because all of them are distributed exponential random variables, and their mean is equal to 1 over lambda. तो जो उनके टाइम्स ऑफ अराइवल्स हैं वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं वो पॉइजॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है. यानी कि दो चीजें इसके अंदर घुसी हुई. Assumption of stationary and independent increments is basically equivalent to asserting that at any point in time t, the process probabilistically restarts itself. आप ये भी कह सकते हैं इसको. So from any point on, the process is independent from all that has previously occurred. ये stationary process हो, independent process हो गया.
and also has the same distribution as the original process. ये आपका stationary increments होगा. Other words, the process has no memory. अब जब memory ना हो तो इसका मतलब exponentially बन जाता है. इसका मतलब arrival times, inter arrival times exponential हैं और count जो है वो Poisson's है. अच्छा, फिर एक और चीज आ गई. And what is that thing? That is Sn. So Sn is the arrival time of the nth event. It is also called the waiting time until the nth event. And you can see that this arrival time or waiting time is just equal to sum of ti. अब देखिए ना, हर ti क्या था? पहला t1 था फ्रॉम 0 से लेके फर्स्ट एवेंट तक, t2 था फ्रॉम 1 से लेके 7th एवेंट तक. तो जब आप सबको सम कर देंगे तो जो nth एवेंट होगा उसका टाइम आ जाएगा आपके पास. उसका वेटिंग टाइम भी कह सकते हैं, अराइवल टाइम भी कह सकते हैं. अब ये कह रहे हैं कि जो Sn होगा, अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? Sn की डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट विल बी अ गैमा डिस्ट्रीब्यूशन. आपने सर पहली इतनी गैमा कहाँ से आ गई? सो गैमा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशली ऑल्सो फॉर कम्युनिकेशंस. वहाँ हमारे वायरलेस में ज़्यादातर इसका कंटिन्यूस वाली यूज होती है. इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ अब ये इसने लिखा सेक्शन 2.2 और उससे ख़ास समझ नहीं आती. इसको एक्चुअली दिखाना चाहिए था कि सम ऑफ एक्सपोनेंशियल्स, हर टी तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो सम ऑफ एक्सपोनेंशियल बिकम्स गैमा. ये हमने पढ़ा है जब हम एक्सपोनेंशियल एंड वेरिएबल पढ़ रहे थे. तो क्या हमने इसमें पढ़ा था कि सम ऑफ एक्सपोनेंशियल इज अ गैमा डिस्ट्रीब्यूशन? ये हमने पढ़ा हुआ पहले? नो सर, नहीं पढ़ा. ठीक है, तो फिर इधर से ना कोई ख़ास प्रोपोजिशन से भी नहीं समझ आता कि क्यों गैमा हो रहा है. तो इसमें मैंने कहा जो इसका प्रूफ है उसी को देख लें, उससे काफ़ी अच्छे से क्लियर भी हो जाता है. So he said it is a gamma distribution, and the gamma distribution is given as follows. With parameters n and lambda. So gamma distribution will be n minus 1 factorial lambda t to the power n minus 1 and lambda into e minus lambda t, जैसे एक एक्सपोनेंशियल के अंदर होता है. lambda into e minus lambda x था, यहाँ पे t की टर्म्स में सारा कुछ आ गया. So this gives me the probability of any Sn. Okay, S1 हो सकता है, S10 हो सकता है, S4 हो सकता है, जो भी आप उठा लें, किसी भी एवेंट का जो टोटल टाइम है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इससे गिवन है. नाउ हाउ कैन वी प्रूव दिस? So this may be derived by noting that nth event. सर इसमें f किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ जी, ft pdf को, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को, या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कह दें. किसी भी Sn की, वो देखिए इसके साथ दिया है t एक रैंडम, t एक आपका मतलब एक कंटिन्यूस वेरिएबल है और ये देखिए कंटिन्यूस फंक्शन बन जाएगा. मगर हर nth के लिए डिफरेंट होगा.
n इज इक्वल टू 10 का मतलब है कि आप S10 की बात कर रहे हैं। जब मैं कहूँगा S10 उसका मतलब हो गया कि आप 1 से लेके 10th एवेंट की बात कर रहे हैं। S20 में 20th एवेंट की बात कर रहे हैं। तो हर एक एवेंट जो है उसका एक ये कंटिन्यूस PDF बन जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसको कैसे ड्राइव किया जाए, ये सवाल था। Now the thing to be noted is that nth event will occur to or at time t if and only if the number of events occurring by time t is at least n। तो 10th टाइम पे उसी वक्त एवेंट ने अकर होना है जब टोटल नंबर ऑफ एवेंट्स जो हैं टाइम t तक n हो चुके हैं। फिर ही होगा कि भी t टाइम पे nth एवेंट होगा। पिछले सारे हो चुके होंगे तो फिर t टाइम पे nth एवेंट होगा। दिस मीन्स the counting process of the number of events which have been counting by nt number of events have occurred equal to n or greater than n implies it is two-way implication that Sn is less than or equal to t। चूंकि आपने कहा ना कि t टाइम तक आपके इवेंट्स n या n से ज़्यादा हैं, इसका मतलब ठीक है जी, जो आपका Sn था, जो टोटल टाइम अराइवल टाइम, टोटल वेटिंग टाइम पे n था, वो तो ज़ाहिर है t से छोटा होगा या t के बराबर हो। ये सबको समझ आ गया ये वाला स्टेटमेंट? क्योंकि काउंट, ठीक है, अच्छा। सो वी कैन से दैट क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन जैसे CDF of SNT is the probability that SNT is less than t। ये तो आपके जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं PDF को तो आपके पास क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन जाता है। तो इट इज द समिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट SN is less than t, the probability that SN is less than t is equal to probability that NT is greater than n, जो हमने यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन से आ गया, that probability that NT और count is greater than n। अब आप कहेंगे सर ये कैसे निकलेगा कि probability that my number of events that have occurred till time t is greater than n। तो बड़ा आसान हो गया आपको, क्योंकि हमें तो पता है कि number of events that occur in any interval is a Poisson's distribution। अब वो कह रहा है कि नहीं, हम चाहते हैं कि तमाम प्रॉपर्टीज निकाल ली जाएं जिसपे जो नंबर ऑफ एवेंट्स हैं वो n से ग्रेटर हैं। इसका मतलब है कि आप तमाम पॉइजन्स को सम करेंगे फ्रॉम n अप टिल इन्फिनिटी। कि जब मैं लिखता हूँ ना j इज इक्वल टू n, यहाँ पर समेशन ना हो, मैं कहूँ जी यहाँ पे सिर्फ j इज इक्वल टू n में पुट कर रहा हूँ, j इज इक्वल टू j। इसका क्या मतलब है कि मैंने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को लिया जिसका लैम्डा टी मीन था, लैम्डा टी ऐसे लिखते हैं इसको, नहीं पता है, तो मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ फॉर द nth। प्रोबेबिलिटी में सिर्फ किसकी निकाल रहा हूँ कि जो मेरा काउंट है वो nth के बराबर हो जाए। जी आप कुछ कह रहे हैं? हेलो, हाँ जी, ऐसे साहब कुछ कह रहे हैं? हाँ ठीक है। अब वो कह रहा है एंटी ग्रेटर देन, तो इसका मतलब भी, हाँ जी ठीक है। सो ये देखिए ना, nth के लिए हो जाएगा nn आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि आपने कहा कि probability that nt is equal to n, पर मगर वो कह रहा है nt greater than n, सबको लेना पड़ेगा आपको, सारे काउंट्स को। तो ठीक है, फिर इसको n+1 ले लें, उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दें पॉइजन्स की, n+2 n+2 सारे इन्फिनिटी तक ले जाएं। तो ये सबको जब ले लेंगे
तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आएगी that will be the probability that nt is greater than or equal to n। तो हमने सारों को ले लिया ना, जो n थे n से बड़े सबको ऐड कर, सारे पॉइजन्स को ऐड कर लिया, तो बस प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। हाँ जी, यहाँ तक सबको समझ आ गया? सर वो प्रोबेबिलिटी Sn के इक्वल होगी, क्योंकि वो तो लेस है, लेस देन t है, इक्वल और लेस देन t है। हाँ नहीं, ये हमारे पास क्या आएगा, हाँ ये इसको आप कह सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी कि हमारा जो अराइवल टाइम था या जो हमारा वेटिंग टाइम था वो लेस देन टी है, वो बराबर है कि जो आपका काउंट है वो ग्रेटर देन एन हो जाए। अब काउंट का हमें पता भी, काउंट तो है ही पॉइजन्स, ठीक हो गया ना। जब काउंट मेरा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है तो मुझे तो पता है कि मैं तो हर काउंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ फ्रॉम द पॉइजन्स। तो ग्रेटर देन एन का मतलब है तमाम और इक्वल टू एन, तो एन और इक्वल से एन से बड़े जितने भी हैं पॉइजन सबको ऐड कर दें, तो यू विल गेट द टोटल प्रोबेबिलिटी दैट Sn is less than t or nt is greater than n, so you will get this fSnt by this equation. It is just the summation of all of the Poissons from n up till infinity. ठीक है, सबको समझ आ गया? सर अराइवल टाइम की प्रोबेबिलिटी निकाली ना बेसिकली, उसने उस आई की जगह उसने जे कर दिया उसको। ये तो आप सही कह रहे हैं कि ये जो हम आई की जगह जे कर दिया, फिर जे को एन से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। मगर ये सिर्फ ये प्रॉपर्टी दे रहा है कि एस एन जो है वो लेस देन टी होगा, या आप कह सकते हैं कि जो एन टी है ये सब केस के लिए ट्रू नहीं होगा, इसे इन केस के लिए ट्रू होगा जहाँ पे आपका जहाँ पे आपके नंबर ऑफ इवेंट्स जो हैं वो n से बढ़ जाएं, या आप कह सकते हैं कि जो अराइवल टाइम है आपका वो t से छोटा हो या बराबर, या जो अराइवल टाइम टिल द nth event, ठीक है। Now we will differentiate. I know if I differentiate a cumulative distribution function, I will get the PDF. So I will get this PDF, and I differentiate this thing also. So differentiation will be with respect to t. So I differentiate this factor. So you know this CDF will become PDF. So you know this is product of two functions of time t. So I take its differentiation of the product, differentiation by parts. So first function differentiation will be e minus lambda t into minus lambda. Second function as it is, limits remain the same. In the second you will have limits remaining the same. Second will be first function as it is, differentiation of this function will be j times lambda t j minus 1, and that j will cancel. This will become j minus 1 factorial. All right, so सर उसने j को j माइनस 1 और j फैक्टोरियल बन गया, तो सर j से वो कैंसिल हो गया, तो j माइनस 1 फैक्टोरियल मेरे ख्याल से ये रह जाएगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका जब डिफरेंशियल लेंगे ये चीज़ ऐसे ही आ जाएगी,
इसका लेंगे जे इधर आ जाएगा, जे -1 हो जाएगा और लेमडा बाहर, लेमडा यहाँ आ गया और जे इसके जे से कैंसिल होगा तो जे -1 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इस फैक्टर को उसने उठा के यहाँ लिख दिया, ठीक हो गया। और इस फैक्टर के दो हिस्से बना दिए, एक को लिखा है j = n के साथ, ये हो जाएगा n-1 लैम्डा t n-1, और ये लिखा है j को n+1 के साथ, ये सारा का सारा एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर आप देखें ये दोनों n+ लिखने का मकसद n+1 लिखेंगे समझ ना, आ गया सर, राइट सर, ठीक है, वो n मकसद यहाँ क्या चला गया कि ना और n+1 से टर्म सारी इधर आ गई। इस सम को दो हिस्सों में ब्रेक किया गया, j = n यहाँ पे आ गया और j = n+1 जो है वो इधर आ गया और उसके बाद इंफिनिटी, ठीक है, j = n इधर आ गया और n+1 से इंफिनिटी तक वो ये वाली टर्म है। ठीक है सर। फिर वो कह रहा है कि आप ये देखें ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि आप j को जब n+1 रखेंगे तो n+1 ये n फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ भी j = n ये भी n फैक्टोरियल हो जाएगा। ये पहले ही स्टार्टिंग इसका n फैक्टोरियल के साथ था और ये भी जब n+1 रखेंगे तो ये भी आप देख लें n+1 - 1, ये भी आपका n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, सॉरी ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी और दिस टर्म जो यहाँ से यहाँ आई थी वो एज इट इज ही बाहर आ जाएगी, ठीक है। ये टर्म इधर आई थी, इसकी एक टर्म यहाँ पे आई और ये दोनों टर्म्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये मेरे पास जवाब आ गया। अब ये है क्या, ये तो गैमा डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये तो गैमा डिस्ट्रीब्यूशन है और हमने प्रूफ कर दिया कि जो अराइवल टाइम है, वेटिंग टाइम है, वो एक गैमा डिस्ट्रीब्यूशन है। अब वो कहते हैं जी एक एग्जांपल कर लेते हैं कि पीपल माइग्रेट इन टेरिटरी एट द पॉइजन रेट ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 पर डे। What is the expected time until the 10th immigrant arrives? यानी 10th इमिग्रेंट कितनी देर बाद आएगा, तो इसका मतलब आपको S(10) चाहिए ना। जी सर, S(10) ही बनेगा। हाँ, जो T1 से लेके 10 तक को सम कर देगा। सो वो क्या चीज़ है, सो expected time till the 10th arrival is actually expected of S(10). S(10) है क्या, वही है 1 से लेके n10 तक S(10) टाइम, 10th इंटरवल तक कितना टाइम लग गया। तो ये तो हमने अभी निकाला था पहले ही कि expected time of 10th interval will be equal to the expected time of the first interval plus the expected time of the second, third, fourth, क्योंकि सारे ही भाई देखिए ना ST किसके बराबर है, समेशन ऑफ T1 से T10 तक। अब जो T1 T2 का सम है S10, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ T3, इस तरह से, क्योंकि आपस में सारे इंडिपेंडेंट। Now what is the expectation time of T1? We saw that the expectation time is a exponential distribution with mean of 1 over lambda.
इसका मतलब T1 का 1/λ होगा, T2 का भी 1/λ होगा, सबका जो करेंगे तो 1/λ आएगा. It will come out to be. सर असल में प्रीवियस जो है ना 0 to 9 वो सब 0 हो जाएंगे, सिर्फ 10 रह जाएगा. नहीं देखिए ना, E of S10 चाहिए ना आपको, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द 10th अराइवल, यही चाहिए ना आपको. अब ये S10 है किसके बराबर? S10 बराबर है समेशन ऑफ T1 से लेके T10 तक. ये समझ आ रहा है आपको? जी सर. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल टू expectation S1 plus expectation S2 plus expectation S3 plus going up to plus expectation of S10. अब ये कि एक्सपेक्टेशन ऑफ S1 क्या है वो तो हमने देख लिया था. कि ये जो हमारा S है ये T1 से एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 एसेंस आ गए, और ये जगह एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 प्लस, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 है क्या, वो तो हमने अभी पहले पढ़ा था कि जो T1 है वो सारे के सारे IID एक्सपोनेंशियल हैं और उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू किसके बराबर है? 1/λ की. 1/λ. जब सब के सब 1/λ हैं सबकी एक्सपेक्टेशन, तो ये 10 दफा 1/λ आ जाएगा. ठीक है, 1/λ 10 दफा ऐड होगा. अब लैम्डा ही आपका 1 है तो ये 10 है, यानी कि 10 दिन बाद आपका 10th इमिग्रेंट अराइव करेगा. सर इसमें ऐसे नहीं होगा जो प्रीवियस है वो 0 नहीं होंगे? मतलब कि हमारा सर एसएन स्टार्ट ही 10 से हो रहा है, हमें 10 उसने लिमिट दी है, 10th इमिग्रेंट अराइवल टाइम वो कह रहा है, तो सर जो उससे प्रीवियस हैं वो तो 0 होने चाहिए. नहीं देखिए ना वो हमसे क्या मांग रहा है. He is actually asking us that what is the expected time of the 10th immigrant. अब now what is the formula for the immigrant time? Immigrant time formula is equal to T1 plus T2 plus T3 plus T4 plus T10. भाई T1 T2 है क्या, वो इंटरवल टाइम है ना. तो जो टोटल टाइम है वो तो इन सब के सम के बराबर है. अब उसकी एक्सपेक्टेशन ले लें तो इसका मतलब क्या होगा कि सारे आपस में इंडिपेंडेंट है. तो सबको पता है कि सारे टीज आपस में इंडिपेंडेंट है, कोई इसका मतलब हर एक की आप मीन ले रहे हैं और हर एक का मीन 1/λ, तो 10/λ हो गया, और लैम्डा 1 तो 10 हो गया. सर फिर अच्छा अगर इस तरह आप काउंट करें तो सर फिर 1/1 फिर प्लस 2/1 फिर 3/1 4/1 अप टू 10/λ 10/1 इज इक्वल टू, फिर सर फिर 10 तो नहीं होना चाहिए. तो फिर उस हिसाब से तो फिर ये आप गलत काउंट कर रहे हैं बंदे. हाँ आप देखें ना, सर गलत काउंट कर रहा है ये. हाँ ये गलत काउंट कर रहे हैं ना आप. 1 से 2 का भी 1 नहीं होगा ना. हाँ उसमें थोड़ी 1 2 आएगा, वो हर की वैल्यू 1/λ आएगी. आपने लिखा ना कि Sn इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस 3T करते करते प्लस T10. अब एक्सपेक्टेशन आपने लिया Sn का, इसका मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ T2. अब T1 है ही 1/λ, T2 भी 1/λ है. 1/λ 10 दफा ऐड होके आ रहा है, इसलिए 10/λ हो गया. ऑलराइट, ठीक है. फार्मूला रिपीट कीजिएगा सर, फार्मूला रिपीट कीजिएगा जरा सर. फार्मूला ये है ना, ये देखिए ये फार्मूला T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू S. अगर 10 आपको 10 तक का टाइम चाहिए तो S10 लिखें यहाँ पे, और T1 से T10 तक जाएगा. अब S10 का अगर आप मीन लेंगे तो आपने हर एक का मीन लेना पड़ेगा, T1 का भी, T2 का भी और T10 का भी. T10 तो सिर्फ इंटरवल टाइम है बिटवीन 9th एंड 10th के, मगर हमें पता है कि हर T जो है वो एक्सपोनेंशियल है. और
अच्छा 10 टाइम 10 सेकेंड्स रहते हैं, सॉरी 10 मिनट्स रहते हैं। अच्छा मेरा टाइम खत्म हो गया। तो हर टी जो है वो इंडिपेंडेंट है और हर टी की जो वैल्यू है वो हर टी की जो मीन वैल्यू 1 ओवर लैम्डा है, तो 1 ओवर लैम्डा को 10 दफा आप ऐड करें तो 10 ओवर लैम्डा हो जाएगा। अच्छा, नाउ गो टू द बी पार्ट। What is the probability that the elapsed time between the 10th and the 11th arrival exceed 2 days? अब देखें 10th और 11th के दरमियान टाइम क्या होगा, वो T11 होगा, ऐसा हमने पढ़ा था। Yes, sir. ठीक है ना, तो दरमियान का डबल T11 होगा। अब अगर उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि T11 जो है वो 2 दिन से ज्यादा हो, probability that T11 is greater than 2। अच्छा, अब हम कहेंगे कि ये तो हमने चेक किया ही नहीं, मगर आप गौर से देखें तो हमने ये भी कर लिया। यहाँ देखें ये T1 बड़े इंपॉर्टेंट हैं और अगर आप देखें इन्हीं को आप मॉडल कर सकते हैं, आगे भी ले जा सकते हैं इनको। ये तो इमिग्रेंट प्रॉब्लम ले रहा है, इसको आप कोविड में और दूसरी प्रॉब्लम में भी ले जा सकते हैं। बस कि मॉडल चेंज करना पड़ेगा थोड़ा, ये कि इस मॉडल को फाइन ट्यून कर लें डेटा के साथ, तो आप प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि जी इस इलाके में कोई बीमारी या कोई भी चीज़ वो बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या हो रहा है। तो इस किस्म के मॉडल्स यूज़ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ जाओ, हमने तो ये पढ़ लिया है कि अगर हम ये कहते हैं कि हाँ जी चलें कोई इवेंट अगर हो गया, चले T10 तक इवेंट हो गया एस तक, फिर हम कहें कि हमारा जो अगला इवेंट है वो T से बड़ा है, इसका मतलब S से T तक, यानी इस T इंटरवल तक जो S से S इसमें कोई इवेंट अकर नहीं हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आई थी, E माइनस लैम्डा T की आई थी, हमने प्रूफ कर दिया। तो यहां पर अगर आप गौर से देखें, वो कह रहा है कि T11, इसका मतलब कि जो 10th का टाइम था उसमें 2 आप ऐड कर दें, उसमें कुछ भी अकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि T11 2 से ज्यादा है। तो 10th के टाइम के लेके 2 तक कुछ भी अकर ना हो तो किसके बराबर है, E माइनस जो भी ये था T इंटू लैम्डा, E माइनस T लैम्डा आप पुट करें वो 0.113 आ जाए। So we have also find that the probability the elapsed time is greater than 2 days is 0.133। अच्छा, ये एक और चीज़ है डेफिनेशन की, इसको एक और तरह से भी कर सकते हैं। अभी देखिए हमने कितनी चीज़ों को लिंक किया है, हमने बाइनोमियल और पॉइजन्स को लिंक किया, फिर हमने पॉइजन्स और एक्सपोनेंशियल को भी लिंक कर दिया। अब ये उसी को एक और तरह से कर रहा, अभी हमने एक तरह से पॉइजन्स और एक्सपोनेंशियल को किया, हम दूसरी तरह से एक्सपोनेंशियल और पॉइजन्स को लिंक करेंगे। एंड हाउ इज दैट? So we start with the sequence of TNs। TNs वही है जो इंटर अराइवल टाइम्स, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। ऑफ इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपोनेंशियल, ये हमने पहले ही देखा कि T's हमारे क्या हैं, ये इंडिपेंडेंट्स भी हैं और सब के सब आइडेंटिकली एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें से सबका मीन जो है वो 1 ओवर लैम्डा है, ये हम 2 शो कर चुके हैं। तो हम कहते हैं कि जी हमारे पास एक सीक्वेंस है Tn की, टाइम की सीक्वेंसेस हैं और Tns जो हैं वो IIDs हैं, एक्सपोनेंशियल्स हैं और उनका जो मीन है वो 1 ओवर लैम्डा है। हम कहते हैं भाई ये तो आपने अराइवल टाइम बना लिया, वेरी गुड, Tn इंटर अराइवल टाइम्स बता दिया। हम कहते हैं इसी इंटर अराइवल टाइम का आप एक काउंटिंग प्रोसेस बना दें। और काउंटिंग प्रोसेस का nth इवेंट कब अकर करेगा, जब
आपका जो काउंट है वो T1 से Tn तक हो जाएगा। उसी को देखें उल्टा लेके चल रहे हैं चीज़ वही चीज़ है, मगर यहाँ पे आपने पहले इसको एक्सपोनेंशियल बनाया, अब आप शो कर देंगे भाई ये तो पॉइजन ही बन जाएगा, हमारा प्रोसेस पॉइजन हो जाएगा और जो काउंट होगा वो पॉइजन हो जाएगा, रेट इसका लैम्डा आ जाए, जैसे हमने शुरू में किया था। एंटी को हमने पहले कहा कि हमने तो पहले हमने प्रॉपर्टी लिखी जी, ये जो आपकी काउंटिंग में अगर ये प्रॉपर्टीज आप डालते हैं तो ये पॉइजन, ये जो पॉइजन प्रोसेस है, पॉइजन काउंटिंग प्रोसेस एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, रेट इसका लैम्डा है। फिर उसके बाद हमने कहा भाई टी जो है आपका एक्सपेंशन, यहाँ पे उल्टा चले गए और उल्टे से आप सीधा शो कर दें। All right, so this is many ways of representing the same facts and ये एक और तरह से उसको गैमा दिखाना चाह रहा है Sn को। अब देखिए ना Sn क्या था हमारा, Sn जो nth था वो हम कहते हैं कि वो अकर हुआ है h टाइम में, h इंटरवल में अकर हुआ Sn जो हमारा, यानी t से स्टार्ट हुआ, t प्लस h के दरमियान में वो अकर हुआ। ऑलराइट, तो हमारे पास इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चलो अच्छा ये हम कर लेते हैं। मैं वैसे बताने लगा कि अब हमने करना ये है, हमने यहाँ तक करना है इसका, ये जो नेक्स्ट है ना फर्दर प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन प्रोसेस, इसको हम छोड़ देंगे, ये हमारे कोर्स में नहीं है। और यहाँ से हम फिर डायरेक्टली हम अपने लास्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है प्रॉपर्टीज़ कहना चाहिए, जनरल प्रॉपर्टीज़ कहना चाहिए, इन्होंने पता नहीं क्या नाम दिया। ये सारा हमारे कोर्स में नहीं होगा, मगर जो रिलेटेड एंड प्रॉब्लम्स हैं वो कोर्स में होंगी। पॉइजन प्रोसेस की प्रॉब्लम्स कभी भी लंबी नहीं होती, मगर बहुत ही दिमाग इसमें माइंड बॉगलिंग कहते हैं इनको। अच्छा ये बस ये जनरलाइजेशन में पॉइजन प्रोसेस हम आगे आ जाएंगे। तो ये 5.4 तो इधर फिर 5.4 जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा और इसमें से भी कोशिश करेंगे कोई बहुत मुश्किल प्रॉब्लम ना हो। कल ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मुझे लगता है कि फिर भी 2-3 दिन लेक्चर लग जाएंगे हमारे। कंपाउंड पॉइजन प्रोसेस भी आएगा, तो काफ़ी लंबाई चल जाएगा। मेरे ख्याल से कंडीशनर वगैरह छोड़ देते हैं, बहुत तो मुश्किल हो जाएगा। अगर हम कंपाउंड भी कर लें तो बड़ी बात है, इसमें 2-3 लेक्चर लगेगा। तो यहाँ पे मेरा मतलब है कि यहाँ पे पॉइजन फिर हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो अगर हमें टाइम मिले, पता नहीं अब आपका कोई डेट शीट वगैरह तो आई नहीं वैसे। हाँ जी सीआर साहब, कोई डेट शीट वगैरह दी है ना एग्जाम वगैरह की? हमारे यूटी में नहीं तो सर अभी तक फाइनल है। अच्छा, हमारे यहाँ यूटी में तो मास्टर्स काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ था ना, फरवरी में स्टार्ट हुआ, यहाँ तो जनवरी में स्टार्ट हुआ, मगर उन्होंने रमज़ान में क्लासेस नहीं छोड़ी। तो वो तो हमारे इस हफ्ते सारी क्लासेस ख़त्म कर रहे हैं, अगले हफ्ते से वो मिड टर्म शुरू कर रहे हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि इधर क्या है, और उन्होंने लेक्चर्स काफ़ी कम है, सिर्फ 14 वीक्स के लेक्चर्स हुए हैं, 16 वीक को 14 पे कर दिया इस दफ़ा। तो यूट्यूब में काफ़ी शॉर्ट कर दिया। अजी कुछ कहना चाह रही हैं मैडम? सर कुछ पेपर्स का बताया कब होंगे? पेपर्स का बताया, कहाँ के, यूटी का पूछ रही हैं आप या पंजाब यूनिवर्सिटी? पंजाब का। नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे तो वही आएगी इन्फॉर्मेशन जो आपको आती है, क्योंकि हम दोनों तो एक ही पेज पे ना मैं इस वक्त कैंपस में ना आप कैंपस में। मैं तो वैसे भी मतलब क्या आपको पता कि बेसिकली फैकल्टी में नहीं, बाहर से पढ़ा रहा हूँ एज ए यूटी फैकल्टी। तो मुझे इस वक्त सच्ची बात है कि नहीं पता कि क्या इनका है। तो सर यूईटी में हो रहे हैं पेपर्स? हाँ यूटी में मैं यही बता रहा हूँ कि उन्होंने हमारा ये 14th वीक जो है ना इस थर्सडे को ख़त्म हो जाएगा, तकरीबन 26-27 लेक्चर, सॉरी हाँ 28 कह लें। पहले मिड शुरू हो रहा है हमारे, मिड अलग से होंगे, उसके बाद 2 वीक्स का ब्रेक है, उसमें आप क्विज़ेस वगैरह ले लें, फिर उसके बाद फाइनल है। ये यूटी में ऑनलाइन सर ये ठीक है। नहीं ऑनलाइन नहीं ऑनलाइन तो आपको पता है बिल्कुल ही एचईसी ने मना कर दिया। अब तो ऑनलाइन तो यूटी ने तो पहले भी ऑनलाइन, जब एचईसी ने ऑनलाइन अलाउ भी किया तो सब यूटी ने ऑनलाइन मना कर दिया था कि जी ऑनलाइन पे हम भरोसा नहीं कर सकते।